अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो लेट्स ये क्या है? So let's start. Okay guys, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 स्कूल्स ऑफ गुजरात। So स्टार्ट करते हैं वीडियो। Top 10 schools in Gujarat. Schooling is an important part of a child's life. A good school automatically ensures good quality education and good overall development of the child. So, to help you get good schools, we bring you the list of top schools in Gujarat. Number 10. Ryan International School, Surat. Ryan International School, Surat aims to preserve and enhance the highest standards of excellence and to prepare the generations for the coming times. The school is committed to nurture, in the students, a love and zest for learning and inculcate in them a desire to excel at each level. Number 9. Zaida School for Excellence, Ahmedabad. Zaida School of Excellence is a school affiliated with the CISCE, located in Vijalpur, Jivraj Park, Ahmedabad, India. The school has another branch in Godhavi, affiliated with CBSE. The Vijalpur branch is functional since 2002, having classes 1 to 12 and kindergarten. Number 8. Mahatma Gandhi International School, Ahmedabad. Mahatma Gandhi International School, MGIS, in Mithakali, Ahmedabad, India, is the first authorized IB World School in Gujarat, having obtained that status in November 2002. MGIS is also registered with the University of Cambridge International Examinations, the Mission Lec Française and Edexcel. The school enrolls approximately 200 students from the local community as well as expatriate children. Number 7. Sainik School, Jamnagar. The Sainik School at Balachadi, Gujarat is one of 20 Sainik schools in India. It was established in 1961. It is an English medium, residential school for boys providing public school education with a military bias up to 10+2 stage as per the Central Board of Secondary Education. Number 6. Delhi Public School, Bhopal, Ahmedabad. DPS Bhopal Ahmedabad is committed to provide education that helps to develop children into balanced personalities, with sound values of love, kindness, devotion, and service before self. DPS schools are establishing a network platform, which will deliver the cumulative experience to each DPS. Number 5. Ahmedabad International School, Ahmedabad. Ahmedabad International School is a private school located in Ahmedabad, Gujarat, India. It follows 3 curriculum: Cambridge International Examinations, International Baccalaureate Organization and Gujarat Board. The school also has an educational initiative for underprivileged children christened Snashrushti, which means World of Love, wherein free education is provided to adolescents. Number 4. Delhi Public School, Kalali, Vadodara. DPS Vadodara encompasses in itself the entire gamut of skills and knowledge required in formulating the guiding principles which helps the students to grow into such individuals who are not only capable of competing with the best but also embodying the values which draw on our best cultural heritage, thus making this school one of the top schools in Gujarat. Number 3. Delhi Public School, Dumas Koryasi, Surat. Delhi public schools have been committed to providing quality education in different parts of the country as well as overseas and are now rapidly extending their reach all over the country. Their curriculum centered on the syllabus prescribed by the NCERT or CBSE, focuses on the individual needs of learners. They wish to nurture global citizens of the 21st century, who will be alert and responsive to vital issues in their own time and space.
Number 2. Atul Vidyalaya, Atul. Atul Vidyalaya has approaches to teaching and learning that are well tried in other parts of the world but new to India. While preserving the best in traditional Indian education and culture, they have opted for a student-centric system with ample opportunities for project work and discovery learning, guided by a well-qualified teaching faculty with generous access to quality in-service training both in India and abroad. Number 1. SGVP International School, Ahmedabad, ICSE and IGCSE. A secular school for boys providing quality education since last 16 years, affiliated with CISCE, New Delhi, and accredited by Advanced, USA. School offers education from K to 12 with a balanced emphasis on study, sports and spirituality, operated by Sri Swaminarayan Gurukul Sarvabhauma Trust. It is certainly one of the top schools in Gujarat. Thanks for watching. If you liked this video, please don't forget to like and share this जी video. जनाब, ये थे गुजरात के कुछ स्कूल और बेहतरीन, और वाकई कुछ स्कूलों के साथ तो लिखा हुआ था इंटरनेशनल स्कूल, तो वाकई ही इंटरनेशनल लेवल के थे। SEVP और अतुल SEVP एक पुराने दौर की बिल्डिंग लग रही है। हाँ। और एक अच्छा, कुछ मुझे ना मस्जिद टाइप, मीनार टाइप, मस्जिद टाइप लगा, गुंबद और मीनार, ये मुझे पुराने तर्ज का लगा। लेकिन पुराने दौर में बिल्डिंगें ऐसी ही बनती थी, जरूरी नहीं होता था वो मस्जिद हो। अच्छा, रकबा भी काफी बड़ा लग रहा है, जैसे हम ताजमहल वगैरह देखते हैं, काफी बड़ा बना हुआ है। पहले की बिल्डिंगें बड़ी ऊंची छतें और बड़ी। हम जिस फ्लैट में रहे ना, उसकी 5 मंजिला छत कितनी ऊंची होगी। तो पहले बिल्डिंगें इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची बनती थी कि आप ज़मीन पर हो ना, तो उनकी पहली छत इस वक्त की 5 मंजिला छत के बराबर। ओह अच्छा। यानी ज़मीन से लेके उनकी छत ऐसा लग रहा था 2 से 3 बंदा फ्लोर बना ले। ठीक। उसके बीच में क्यों, जगह बहुत होती थी, आबादी कम थी, खुली जगह बनाते थे। अब भी गांव देहात में इस तरह की हवेलियाँ, इस तरह के घर अभी भी हैं, लोग देखते हैं। और ब्रिटिश दौर की आप बिल्डिंगें देख लें, ऊंची छतें हैं। वो लास्ट वाली जो थी वो इसी तरह की लग रही थी पुराने। लेकिन कुछ स्कूल तो देखकर हमें लगा कि फार्म हाउसों को वो तो स्विमिंग पूल। अच्छा, यहाँ पे भी अब रुझान हो गया है। मैंने 1-2 स्कूल्स के बारे में पढ़ा कराची में, और सुना भी था। कराची में गुलशन साइड पे, गुलशन इकबाल है ना, उस साइड पे मैंने सुना कि वहाँ पे बाकायदा बच्चों को स्विमिंग क्लासेस दी जा रही हैं। ज़बरदस्त। तो प्रॉपर स्विमिंग पूल है और इसके अलावा रेस्टिंग रूम है बच्चों के लिए, एक्टिविटी रूम है। तो ये चीज़ें अब हमारी तरफ भी काफ़ी फिजिकली एजुकेशन की तरफ भी लोग आ रहे हैं। फिजिकली एजुकेशन की तरफ भी लोग आ रहे हैं। और यही एक मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ते रहें और किताबों में क्या। और कोविड के बाद तो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है। इंटरनेट के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है इंटरनेट, ये भी हमें पता चला, इससे पहले हमें अंदाज़ा नहीं था। और एक और चीज़ नोट की इस वीडियो में हमने कि ज़्यादातर बड़ा सिटी जो है वो अहमदाबाद है। बड़ा सिटी अहमदाबाद है, वो इस तरह पता चला कि ज़्यादा स्कूल बड़े वहाँ हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि दिल्ली प्रॉपर्ली एक सिटी है। हमारे व्यूवर्स इस बात का मुझे जवाब देंगे कमेंट के ज़रिए। मेरा ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करते हैं आप लोग कि वो तो अलग एक प्रॉपर सिटी है दिल्ली, जैसे मुंबई है, दिल्ली है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स के नेम हमने देखा दिल्ली मेमोरियल या दिल्ली एक्सीलेंस। अब इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ जी। और है अहमदाबाद में, ठीक है। तो दिल्ली स्कूल कैसे आ गया? हाँ वही तो। अब मिसाल के तौर पर कराची में दिल्ली स्वीट कैसे आ गया? क्यों है? दिल्ली स्वीट है तो वो तो आप कहते हैं ना वो पहले से उनके अबाउट पहले से है या नहीं है, लेकिन दिल्ली तो ये नहीं है ना। नहीं, दिल्ली नहीं है, लेकिन कराची स्वीट शॉप का तो चले समझ में आता है। रुके, शॉप का ये समझ में आता है कि मेरे वो जो अबाउस्ताद थे उन्होंने किसी नाम से वो शॉप रखी थी, तो समझ में आता है। लेकिन स्कूल, और वो भी एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे उसका नामो निशान नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से कोई शख्स आप जहाँ से माइग्रेट होते हैं या जहाँ से उनका ताल्लुक होता है, वो कई स्कूल बनाते हैं, तो वो उसी नाम से बनाते हैं अपने माइग्रेशन जहाँ से होती है ना जिनकी, तो उसी नाम से। जैसे शॉप है ना, स्कूल भी एक बिजनेस है, एक शॉप है। अब मिसाल के तौर पे कोई अपनी कंपनी खोलता है, कंपनी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ से जो लोग आए थे उन्होंने मे भी बनाया हो, मे भी वो फाउंडर हो इसके। बिल्कुल। लेकिन तो फिर इससे ये चीज़ ज़्यादा पता चल रही है हमें थोड़ा सा कि एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादातर दिल्ली वाले ज़्यादा उनका रोल रहा है। क्योंकि देखिए, एक स्कूल नहीं, 2 स्कूल नहीं, मैंने 3-4 स्कूल के नाम लिए, ये भी कह सकते हैं दिल्ली आ रहा था। इससे भी आइडिया हो सकता है। हो रहा है। अच्छा, दुबई में कराची स्वीट्स,
कराची के नाम से शॉप्स हैं, दुबई में इंडिया की कई सिटी के नाम से शॉप्स हैं, हमारे यहाँ इंडिया के कराची नाम से, हाँ। बहुत इलाके हैं पूरे से, बैंगलोर स्वीट्स है, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली स्वीट्स है, बिल्कुल, ढाका स्वीट्स है, बम्बई होटल है, बम्बई होटल है, हाँ। चाय का होटल, खाने पीने का बड़ा फेमस है। सही। और इस तरह कई इलाकों के नाम है। गांधीनगर एक इलाका है, पहले था होता था। अच्छा। और हमारा जो चिड़ियाघर है इसका नाम गांधी गार्डन था पहले। अच्छा। उसके बाद चिड़ियाघर इसका नाम हो गया जू, कराची जू हो गया। और मेरे ख्याल में मुंबई में भी कराची के नाम से बहुत सारी चीज़ होंगी, क्योंकि जब यहाँ से लोग गए थे ना माइग्रेट करके, हिंदू कराची से, जब पाकिस्तान बना था, इंडिया बना था, तो उस वक्त काफ़ी लोग यहाँ से गए, तो उन्होंने अपने कराची के नाम से भी चीज़ों के नाम रखे होंगे। अच्छा, ये कॉमन सी बात होती है। मुझे लगता है ये जो कराची और मुंबई है, ये तो एक ही था एरिया, करीब है, और एक जैसे इनकी नेचर। मुझे लगता है मिला हुआ था वो, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बीच में जब ना थोड़ा सा सेपरेशन के हवाले से बातें हो रही थी, तो पता चल रहा था कि जी ये पाकिस्तान पता नहीं कौन सी 2030 की लिस्ट में नहीं है कि 35 के, ऐसे कुछ था कि उन्होंने एक अंग्रेज़ों की कोई लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान का वजूद नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके अंदर बताया गया था कि प्रॉपर्ली जो हमारा सिंध वाला जो हिस्सा है ना, यानी कि जो हमारा सूबा है, जो कराची, ये सारा गुजरात में शामिल था, सारा का सारा मुंबई के साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा, गुजरात में शामिल, कराची और मुंबई मिल जाएगा। तो उस वक्त बीच में बहुत ये खबरें, बहुत रूमर्स कह लें, खबरें कह लें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने कोई ऑफिशियली नहीं सुना था, बस लोगों के मुँह से सुना था कि ये और वो मिल जाएगा, क्योंकि पहले एक दूसरे के साथ थे, फिर सेपरेशन हुआ है, तो अलग भी वहीं से हुए, तो मिलेंगे भी तो वहीं मिलेंगे। तो इससे थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा मुंबई और कराची बिल्कुल सेम था, बिल्कुल एक जैसा था। अच्छा, एनवायरनमेंट भी लोग कहते हैं काफ़ी हद तक सेम है, बहुत हद तक समंदर लगता है, मौसम बहुत सेम है। अच्छा, ऑटोमेटिकली शुरू में ही जब यहाँ आबादी थी, इंडिया और पाकिस्तान जब था और बड़े सगीर था, तो यहाँ पे ज़्यादा आबादी थी, पब्लिक थी, यहाँ पे बिजनेस बहुत थे, फैक्ट्रियाँ बहुत थे, तो दोनों ने ही तरक्की की। लेकिन कराची की तरक्की आबादी की लिहाज से तो कराची ने बहुत तरक्की की। मतलब बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के चक्कर में आए, और मतलब बिज़नेस यहाँ था, फैक्ट्रियाँ यहाँ थी, मजदूरी करते आते थे लोग, बड़ी बड़ी मार्केटें, कहीं रोज़गार नहीं मिलता तो उसको कराची में मिल जाता था। तो कराची ने तरक्की की आबादी के लिहाज से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो बैठता गया। अभी भी कराची में 2-2 घंटे, 2.5 घंटे का भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती है, ट्रैफिक, रोड टूटे फूटे मिलते हैं आपको। अच्छा, मुंबई का ये हो गया, मुंबई का कि मुंबई ने आबादी के हवाले से भी तरक्की की होगी, लोग आते हैं वहाँ पे अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस के लिए लोग आते हैं, पूरे इंडिया से मेरे ख्याल में आते होंगे, पूरी दुनिया से आते होंगे। तो लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने ये किया कि वहाँ की तरक्की के लिए भी काम किए, ताकि जो आबादी आए वो परेशान ना हो, उससे सहूलतें मिलें। हमारे कराची में मैंने बहुत ज़्यादा, अब पता है क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि जो बहुत पहले के दौर की बिल्डिंग्स थी ना, या तो सेपरेशन से पहले की, या फिर वो जो आप कहते हैं ब्रिटिश दौर था उस दौर की, क्योंकि हमें सदर वगैरह में अभी भी देखने को मिलती है वैसे पीले कलर के, येलो कलर के पत्थर होते हैं, तो वो देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड, अभी नहीं बनता उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो हो भी नहीं सकता ना। तो मैंने देखा अब उस किस्म की जो बिल्डिंग्स है ना, क्योंकि देख रेख नहीं करी गई, उनकी एक मतलब मेंटेन नहीं रखा गया उन चीज़ों को, उन बिल्डिंग्स को, जबकि हम एज़ कम्पेयर टू दिस, हम अगर दिल्ली को लें तो दिल्ली में आपने देखा कितनी पुरानी इमारतें, लेकिन अपनी जगह बरकरार हैं अभी तक। तो मैंने कराची में देखा अब वो बिल्डिंग्स पे ऐसे असरात आ गए हैं, या ऐसा वक्त आ चुका है कि वो ज़मीन बोस हो रही हैं। हमारे साइड पे भी ये देखने को हमें मिला कि एक बिल्डिंग अच्छी खासी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग, वो खुद ब खुद गिर गई, पुराने दौर की थी, वो पुराने दौर की थी, उसका कोई मतलब देख रेख कुछ भी नहीं था। वही वाली चीज़ होती है कि जब आप इस तरह की चीज़ों की देख रेख नहीं करेंगे तो टूटेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि तालीम, मेन चीज़ बात थी तालीम की। इंडिया में जैसे हमारे यहाँ था ना, प्राइमरी 5 तक बल्कि है, मिडिल 8 तक, फिर उसके बाद 9-10, लेकिन आपने नोट किया था, हमने एक वीडियो देखी थी एजुकेशन पॉलिसी पर इंडिया की, कि उनकी न्यू पॉलिसी आ चुकी है उनकी, और उस पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारी अभी तक वही ब्रिटिश निज़ाम चल रहा है, और हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं हमारी जो तालीम है वो हमें सिखाती है जॉब करना, हमने कंपनी किस तरह चलानी है, हमने कंपनियाँ किस तरह चलानी है, हमने फलाना डिपार्ट किस तरह संभालना है, हमने फलाना डिपार्ट, हमें कंपनी ओनर कैसे बनना है, ये शायद। अच्छा, मुझे याद आया शार्क टैंक में एक बात हुई थी, याद है आपके, उनके एक जज ने कहा था, पीयूष ने कहा था आई थिंक, कि इंजीनियर्स बन गए इंडिया से, पूरी दुनिया में फैल गए, डॉक्टर्स बन गए, उनका एक दौर रहा, एक ज़माना रहा, एक एरा रहा, वो पूरी दुनिया में फैल गए, उन्होंने अपना नाम अपना काम दिखा दिया। अब ये जो 2020 से लेकर 2030 तक है ना, ये है एंटरप्रेन्योर्स का दौर। अब इसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं,
वो दिखाएंगी दुनिया को कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे बिजनेस करने हैं। कह रहे थे कि आईटी के हवाले से भी हमने बताया दुनिया को, सबको बताया। अब हम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे बनाएंगे कि वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलेंगे और वो बताएंगे, दुनिया को सिखाएंगे कि कैसे करना है। हमने वीडियो देखी थी जिसमें वो किसान का एक ख़ानदान से लड़का था, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। जो कि मतलब है कि अपनी एक चीज़ ईजाद की थी कि सहूलत हो पानी वगैरह के लिए, वो पानी छिड़काव के लिए। वो केमिकल होता है, मेडिसिन होती हैं, वो दवाइयाँ छिड़कते हैं तो कीड़े मकोड़े नहीं खाते फसल को, वो छिड़काव होता है। तो वो इनके पीछे कमर पे लगा के करते थे, तो कहते थे उससे आंखों में भी जाता था और उससे सेहत भी ख़राब होती है, तो उसने ये चीज़ बनाई थी। वो उधर जा रहा है। हाँ, बाकायदा उन्होंने बताया उनके फादर शिकार भी हो गए थे, शिकार हो गए थे। बहुत ही पेशेंस उसके अंदर था, बहुत ही जज्बाती था, बहुत ही मतलब बहुत ही वर्ड अगर कहें तो प्योर था, जो दिल में वो ज़बान। मैं उस वीडियो में एक चीज़ बोलना भूल गया था, मुझे बाद में याद आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो अभी इत्तेफाक से बात निकली, आपने शार्क टैंक की बात निकाली तो मुझे वो जुमला याद आ गया, किसान अन्नदाता होता है। अन्नदाता होता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक वो चीज़ होती है कि यानी कि पूरे देश को, सबको अनाज इसकी तरफ से आता है। इसका जितना शुक्र अदा करें हम लोग, जितना थैंक यू बनने कम है। और दूसरी बात उसने ये बहुत बेहतरीन बात की थी, जब उससे कहा था कि आप जॉब क्यों नहीं कर लेते, आपने कहीं अप्लाई किया, तो उसने बोला मैं कभी किसान कभी गुलाम नहीं बन सकता। बड़ी बात, जो करता है खुद करता है, अपना करता है। बल्कि आप अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम एक तरीके से उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वो ना करें, वो इतनी मेहनत ना करें, वो इतनी हल। और आपको पता है अक्सर किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलता नहीं है। बीच के जो बंदे होते हैं ना, बीच किसान मेहनत करता है, गल्ला उगाता है, अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, वो मंडी तक जाता है। बीच के एक बंदे होते हैं, वो इनसे लेते हैं, उधर देते हैं, इधर सस्ता लेते हैं, आड़ती बोलते हैं, होलसेलर, सुपर होलसेलर बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, वो फिर आगे मार्केट तक पहुंचाता है। तो वो असल फ़ायदा उठा लेता है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं हमारे किसान ना करें, मेहनत ना करें, काम ना करें, तो हम तो भूखे मर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि आने वाली नस्लों के जो बच्चे हैं किसानों के, वो किसान की खेती बाड़ी से हट रहे हैं। खेती बाड़ी को वो काम नहीं करेंगे। वो देखे पढ़ लिख गया ना बच्चा, तो वो कहते हैं मेरा काम नहीं है। वो माइंड नहीं रहेगा। तो पढ़ लिखने के बाद आप अपने काम को और बेहतर करो, होना ये चाहिए। किसान का बेटा किसानी करता है तो उसके अंदर ट्रिक्स नहीं लाएं, जिद्दत लाएं, तालीम को अपनी शामिल करें, तजुर्बे करें। लेकिन ये कि वो अक्सर सोचता है कि मैंने अब तालीम हासिल कर लिया तो मैं अब कुछ और करूँ। इस तरह अगर आने वाली हर नस्ल में थोड़े थोड़े बच्चे अलग होते जाएं अपने ख़ानदानी काम से, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। इस पर भी मैंने एक बात साउथ की मूवी देखी है यार, क्या महेश बाबू की, है क्या फिल्म बना डाली यार, क्या फिल्म। तो वो भी उनका भी निशान हट जाता है। मैं कहता हूँ ये जो अच्छा कभी एक चीज़, वो उस फिल्म का भी हमें नाम कमेंट में आ गया ना, विशाल। हाँ, उसका तो आ गया, नाम आ गया। अच्छा, रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। विशाल हीरो थे उसमें। मैं कहता हूँ कि बहुत आने वाले दौर के हिसाब से हमें एक अल्टीमेटम दे दिया गया। और ये जो महेश बाबू की जो मूवी थी किसानों के ऊपर, जिस तरह के, पूछ रही हूँ कि इसके अंदर यही था कि वो मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो रुझान नहीं होता। और ये बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है। फिर क्या करेंगे? ये गांव चला जाता है। वाओ। और गांव में बड़े बड़े लोग इससे मिलने आते हैं। अच्छा। मतलब एक गांव में छोटा सा सेटअप लगाता है, जहाज़ों में आते हैं लोग, और ये गांव में किसानों को खुद खेती बाड़ी शुरू कर देता है। जबकि ये बहुत क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा। और इसके जो दादा थे वो गांव में अस्पताल बनाना चाहते हैं, और इसके अब्बू जो है वो गांव से चले जाते, छोड़ के अमीर बन जाते हैं। महेश बाबू की स्टोरी फिर किसी और वीडियो में। कमाल यार, मैं जज्बाती हो गया, बहुत जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, मूवीज अच्छा पता है क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ एजुकेशन देती है। मैं बताती हूँ नाम की बात। कहते हैं कि कोई मेरे सामने बंदा मार दे, मुझे एक आंसू नहीं आएगा, लेकिन मूवी में अगर कोई विलेन किसी को मार रहा होता है, किसी को काट रहा होता है, या किसी को गोली चला रहा होता है, किसी को जख्मी कर रहा होता है, किसी को मार धाड़ हो रही होती है, तो मेरी आंखों में टप आंसू बहते हैं। तो थोड़ा सा भी ये क्या मतलब रियल में देख के तो ज्यादा आएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे रियल में किसी कोई जख्मी पड़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा तब होगा, मुझे नहीं होता, मुझे पता नहीं क्यों इतना नहीं होता। अच्छा, मैं फिल्म में देखता हूँ ना कोई ऐसे इमोशनल सीन, बचाने तो नहीं चले जाते मैं बहुत उसके अंदर डीपली चला जाता हूँ मैं, और अक्सर वीडियो में मेरे आंसू भी निकलते हैं, और आप लोग कहते हैं कि यार ये नाटक कर रहे हैं आप कहती हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। कैमरामैन अक्सर कहता है ना, याद है आपको? कैमरामैन बदनाम करें, बच्ची को बदनाम ना करें। नहीं, खैर ये एक आंसू जो है, मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ है जो मैं खैर में शायद नाटक नहीं हो सकता, सिवाय वैसे
वैसे वैसे मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। वो मगरमच्छ के आंसू कब निकलते हैं पता है आपको? जब कोई एक्टिंग करे। नहीं नहीं, मगरमच्छ के आंसू जब निकलते जब वो खाता है। क्या खाना खाता है उसके आंसू निकलते हैं। हैं? हाँ हाँ, और वो आंसू नहीं मगरमच्छ होते। के आंसू का मतलब होता है झूठे आंसू, वो तो फेक। वो तो मुहावरा है। वो मुहावरा है। तो आपने कहा लेकिन क्या रियल खाता है? में भी मगरमच्छ जब खाता है ना खाना, गोश्त खाता है तो उसके आंसू निकलते हैं, ये एक लॉजिक है। अच्छा, तो यानी अफसोस होता है उसे अपना शिकार नहीं करके? नहीं, आंसू निकलने का मतलब दुख नहीं होता, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके उसमें, तो तो उसकी इसीलिए मुहावरा सेट कर दिया गया है। हो सकता है, लेकिन मैं एक नॉलेज थी, मुझे पता थी, तो मैंने आपको पता थी। सो मच। खैर दोस्तों, बात हो रही थी गुजरात के स्कूल्स की और मगरमच्छ तक पहुंचे हुए। लो माफी, आपकी तो नॉलेज। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।